Watch us move. اور یہ دعا بھی کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ابھی ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی۔ آج پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم سب مل جل کر جو محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہیں لے آئیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اس پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا، آزادی لی تھی۔ گو کہ مشکل مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے ہم کیسے گزرتے ہیں، تو قوم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی فرمان ہے کہ مسلمان مشکل وقت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مشکل مرحلے سے بھی گزر جائیں گے۔ یہ قوم، یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ آج جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی مسلسل ترقی اور تیز رفتاری کی طرف گامزن ہے، جس طرح پاکستان میں شرح سود کم ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارے دوست ممالک جن میں خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا اور ترکیہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل مرحلے میں کھڑے ہیں، اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جس طرح ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں جس طرح سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہمارے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں وہاں خوشحالی آئے، ہم سب مل جل کر اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ گو کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان معاشی طور پر خوشحال ہو، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان صف اول کے ملکوں میں کھڑا ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ملک ہے، جہاں 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل یہ ملک ہے، جہاں کے بزرگ بھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آج بھی محنت کے ساتھ کھڑے ہیں، عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک مضبوط افواج پاکستان اور فورسز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس ملک کے سپہ سالار، اس ملک کے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے ایز اے ٹیم حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی حفاظت کے لیے SIFC جیسے منصوبوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جس سے بیرونی طاقتیں
परेशान हैं और वो गाहे बगाहे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए मंसूबा बंदी करती रहती हैं। और यही वजह है कि कभी हम बलूचिस्तान में कोयटा जैसे शहर में बड़े बड़े वाक़यात देखते हैं, और आज भी इस वक्त पारा चनारगुरम एजेंसी का वाक़या आप सबके सामने है कि जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दोनों लोगों के दरमियान मसाइलत की कोशिश हो रही है, लेकिन बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही सिमत जाने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसीलिए मुल्क में बार बार 9 मई जैसे वाक़यात और 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते रहते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ, फंडिंग बार बार ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हुए दिखाती है। लेकिन अगर आज वो भी समझते हैं कि मज़ाकरात से ही हल निकलना है तो ये खुश आइन है। मैं समझता हूँ कि हमें पूरे रीजन को देखना है, क्योंकि हमें तरक्की करने के लिए ऐसी मिसालें देखनी है कि जहाँ ज़रा सी कोताहियों ने बड़े बड़े मुल्क की हुकूमतें तो ख़त्म की ही, लेकिन उनकी सरहदों को भी गैर महफूज बना दिया। हमारे सामने शाम, लबनान, इराक़ जैसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक मज़बूत अफवाज है। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी उसी तरह से आज़ादी हो जैसे हम इस पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उन्हें भी आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त हो। जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं उन्हें और उनकी रोकथाम की जाए। मैं समझता हूँ कि हम सही ट्रैक की जानिब गामज़न हैं और मुशावरत से एक दूसरे के साथ बैठकर इन मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। पाकिस्तान उसी तरफ चलेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था, उनकी सोच थी, उसी तरफ लेकर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर चलेंगे। और मैं आखिरी में फिर ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान और उनकी कही हुई बातों पर अमल करें और इस पाकिस्तान को उनकी सोच और उनके कहे हुए जो फरमान है उस पर लेकर चलें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2024 मुझे ये एजाज़ है कि मैं गवर्नर साहब के साथ अपनी सूबाई काबीना के साथ यहाँ कायदे आज़म की मज़ार पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। कायदे आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि कायदे आज़म की विज़न के मुताबिक इस मुल्क को, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, बैरूनी ताकतों से जो उनकी साजिशें हैं उनसे बचाएं। लेकिन इसका हल सिर्फ़ हमारे अपने पास है, हम सब के पास है। दुश्मन तो ज़रूर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद होंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के करम से हम इस मुल्क को अपने बाद आने वाली जो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी नस्लें, उनके लिए एक बेहतर, अमन पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। हमें आज के दिन इसके साथ साथ जो कुर्बानियाँ हमारे शोहदा ने दी हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क के दिफा को और मजबूत किया, और हमारे बहादुर अफवाज, हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस और बाकी जो शोहदा हैं, ख़ास तौर पे जमहूरियत के शोहदा, उनको याद करना चाहिए। इन्हीं शोहदा के खून की वजह से ही
हम आज मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी की लीडरशिप में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी, सियासी और हमारे जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत से, लगन से, नेक नियति से हम इन सारे मुश्किलात पे काबू पाएंगे। आज के दिन मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ, दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी जो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे खड़े हैं जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को कहा था कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है जहाँ पे हर मज़हब वाले, मुसलमान अपनी मसाजिद को, ईसाई अपने गिरजाघरों को, हिंदू अपने मंदिरों को जा सकते हैं। और आज के दिन हमें ख़ास तौर पे ये अहद करना चाहिए कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था इस मुल्क को जिस तरीके से बनाना था उस पर हम पूरा उतरें। मैं आखिर में जो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त है कि मज़ालिम हो तो गाज़ा के इलाके में हो रहे हैं लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। और अगर इस दुनिया को हमने अमन का गहवारा बनाना है तो ये बर्बरियत चाहे वो फ़लस्तीन में हो जाए, चाहे कश्मीर में हिंदुस्तानी बर्बरियत हो, उसका पूरी दुनिया ने ना सिर्फ नोटिस लेना है बल्कि उसका ख़ात्मा करना है। इसलिए कि आज कहीं और कल उनकी तरफ भी ये मसला पैदा हो सकता है जो कि इस बर्बरियत की मजम्मत नहीं करते। मैं एक बार फिर पूरी कौम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने दोनों हजरात ने कौमी सलामती, अमन अमान का जिक्र किया, तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है। कुछ अरसा पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई गई थी हुकूमती सतह पे, वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि यहाँ बाहर आने वालों की डिटेल्स आपके पास हों और अमन अमान की सूरत हाल की ख़राबी में भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें इनका हाथ है। गैर कानूनी अफ़गानी, बंगाली, बर्मी और बहुत सारी इसमें जो है वो जिक्र होता है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए? सबसे पहले तो हमीद मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सिंध अमन का गहवारा है। सिंध ने हमेशा, मैं खुद, हमारे बड़े भी सऊदी अरब से आए थे, यहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके बड़े ही बाहर से, सिंध अब से नहीं सदियों से अमन का गहवारा रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। हाँ, जहाँ और जो आपने दूसरी बात की, इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये किया है हमने। ये आपने देखा होगा जब पिछले दौरे हुकूमत में अचानक एक पता नहीं जिसकी आजकल बात भी हो रही है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, कि जो अफ़गानिस्तान से लोगों को आम माफ़ी टाइप का ऐलान कर दिया गया था, यहाँ पे लोग आए और उनको हमने आइडेंटिफाई करके सबको वापस किया। और इस वक्त भी ये हमारा अज़म है। हाँ, ऐसे अगर वाक़यात होते हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और ये एक मर्डर भी इज़ वन टू मैनी। जब मैं आपको बताऊँ एक शख्स की भी जान ली जाती है तो एक से वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हुकूमतें इस पे बिल्कुल खामोश हैं और कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। हाँ, आपका दिल ज़रूर दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है किसी भी मज़लूम की मौत की वजह से। और उस पे हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कार्रवाई करेंगे जहाँ पे भी वो होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, जालिम को अपने जुल्म की सज़ा मिलेगी, ये आपको यकीन होना चाहिए। और हुकूमत इसके बारे में बड़ी क्लियर है। साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के सिवा
जो भी वफाकी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिंध के साथ मुख्तलिफ मामलात में नाइंसाफियाँ की, लेकिन ये जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वोट से बनी है। क्या अब इस हुकूमत के आने के बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि नया NFC मिलेगा सिंध को या पूरे मुल्क को? दूसरा ये कि सिंध के जो बड़े बड़े मनसूबे हैं, जामशोरो सेवन रोड, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, गाज डैम मनसूबा, इनके लिए फंड्स क्यों नहीं मिल रहे? क्या होगा, क्यों नहीं आप बात करते? अच्छा, क्यों नहीं आप बात करते, ये आपने आखिर में कह दिया। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपने पूरा जवाब भी दे दिया, नहीं मैं बात करता हूँ और करता रहूँ। और आपको इस दफ़े अगर आप PSDP उठा के देख लें, इस साल सिंध की स्कीमें जो सिंध हुकूमत एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए तकरीबन 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं वफाक ने, और ये इस साल हुआ है। इससे पिछले सालों में ये रकम घट के 5 अरब रुपए पे मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामना टेसोरी मीडिया से गुफ्तगू करें, आपने मुलाहिजा किया।